Welcome back to my new vlog. Shri Shivai Namastabyam. Like, comment, share and subscribe my channel. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। और मैं नहा धोवा कर रेडी हो गई पूजा पाठ करके। अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। और मेरा आज खाना मैं फेवरेट, मेरा तो सब दिन से फेवरेट रहा है। कटहल का सब्जी है और रोटी एंड जलेबी, ये तो मेरा फेवरेट है। तो पहले खाते बहुत ज़ोरों का भूख लगा है। आपसे मिलते हैं खाने के बाद। 1 मिशन फेल, 2nd मिशन सक्सेसफुल। ठंडा उच्चा, वाह 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 वाह। रोक दीजिएगा। Jai Hind. Jai Hind, sir. Today we all are gathered here for celebration of Republic Day, but it is not only celebration of Republic Day. Along with Republic Day, eventually we are, using this occasion and this space to fine tune your skills that you learn over here. It is not only about Republic Day. That is the first thing which you have to understand. It could have been done even without having this huge amount of competition. Second thing is, why do we celebrate Republic Day? So, as I know, I think I have a huge trust on you, but it is not blind. So, but still I trust that you all know why do we celebrate Republic Day. A lot of people do not know the difference between Independence Day and Republic Day. Like just when I came, some people came upstairs and then the other people greeted them with Happy Independence Day. And the person who received the greeting also responded saying Happy Independence Day. So this is not something which I expected. There is a huge difference. Independence Day basically is the day on which we got the status in which we could run our own country. The transfer of power happened on that day. I'll avoid using that we got independence that day. So eventually it was transfer of power as per the official documents. Republic Day is a day on which our constitution was enacted. We all know that it took a lot of time to form a constitution which has become a benchmark for the entire world. I mean, they are sometimes mesmerized, pleased, hypnotized seeing our constitution, the way it embraces all the cults of our country. So it was a huge task in front of the members of Constituent Assembly, but they did a very good job, and we have a constitution what we have today. With time, we needed to make some amendments in the constitution. The reason being, with time, technology came. With time, the mindset of people evolved, and that eventually led to amendments in the constitution. So we had a provision of amendments. Amendments are made quite frequently. However, we are witnessing an age in which we are seeing a complete transformation. I mean, even in the case of constitutional laws. So, like just couple of months in the winter session of Parliament, we saw the 3, huge amendments. I mean, the entire CRPC and IPC has been changed completely, right? So, and now by virtue of that, the entire constitution has got a setback. So, but the moral values of the constitution have been upheld and it will be upheld forever. I mean, the constitution is not something which inculcates moral values among us. It was the moral value of us which has been inculcated into the constitution. So, I mean, I always believe that even if in our country there is no constitution, people are not going to create as much ruckus as there will be in some other Western countries. The reason being, we have, that ethnicity, that morality, that values of humanity. Yeah, of course. बाबुल प्यारे सजन सखारे सुन लो मेरी मैया, बूझ नहीं मैं किसी की सर के नाम जहार में नैया, पतवार
दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने को सुन लो मुहूर्त यही, अकेले चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, दिल से दिल के तार को छुए नहीं थे, दूर से मुंह पे दौलत ये काहे बहे, हम तो प्यार की ख्वाहिश में रिश्ते बुने, तो रिश्तों में लालच हम काहे सहे, क्या शादी के आगे जिंदगी ही नहीं, जो शादी हिसाबों की केवल है वही, ऐसी शादी की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने को सुन लो मुहूर्त यही, अकेली चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो मुझे क्या बेचेगा रुपया। थैंक यू। Can anyone want to give a try? उसमें और डिटेल्स ऐड कर दो ना कि मूवी नई है पुरानी है कि ये होता है। जो भी मूवी नहीं करता है। If you will interchange, the roles it will become very practical. Everyone understood? Yes. Invisible बोल रहा है। Okay, anyone else? Yes, sir. Come on. नीतीश तुरंत Next up we have Anuj and Nitish. Perfect movie आई है। 24 घंटे वही कहता रहता है। डायलॉग बोल सकते हैं। नो वर्ड्स जस्ट मस्ट टेल हिंदी इंग्लिश No, you can't tell a single word. 3 words. Just do action. 2 words. Okay.
मूवी अब से एक्शन कर सकते हैं मूवी एक्शन करो ना। मूवी या सॉन्ग वनली मूवी मूवी मुझे चक्कर इसने लिखा था नहीं तो मैं नहीं देखा नहीं हमने अभी वो देखा जो इसी से किया ना हम समझ गए क्या कहना चाह रहा है और कुछ पैसा देते देने वाला दानवीर मतलब तुमसे नहीं फकीर नसीब चल बैक कैसे ऐसे करिए अच्छा ये बाबू राव का स्टाइल फिर फेरी साफ तो बताइए भैया यार सिर्फ तेरा फेरी हेरा फेरी ये है ग्लास ले लीजिए ग्लास ले लीजिए ग्लास है डिस्पोजेबल से आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है वो पीछे जाते हैं कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि ये घर ये ये घर सोना सोना है से आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है जो पूछे जाती है कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि ये घर तुम मन सोना सोना है किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें कभी लिखा है कि हमसे पूछा है किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चोरी ने किसी के कंगन ने किसी के गजरे ने किसी के गजरे ने महकती सुबहों ने मचलती शामों में अकेली रातों में अंधेरी बातों ने तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सोना सोना है संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सोना सोना है मोहब्बत वालों ने हमारे यारों ने हमें ये लिखा है
कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने आम की छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने खेत खलिहानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों ने दहकते फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है जो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। कभी एक ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती, मेरे दिन बचपन के खेले वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहते आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ यही हर खत में पूछा मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये आंगन सोना सोना। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है जो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्त को सलाम दे, मेरे गाँव में है वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का नाम दे, उसे मेरे प्यार का नाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरे दोस्त मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर घर अपने आऊंगा, उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। क्लास से निकल चुके हैं और
कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। मैं तो ट्रैफिक के कारण ही पागल हो चुकी हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं तो वैसे वार्मर और ब्लेजर पहनी हूँ, इतना नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ है ठंड, पूरा हाथ पूरा कोल्ड हो चुका है। मिलते हैं आपको घर पे जाकर। ये देखो ये मंदिर कितना प्यारा है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं से गुजरती हूँ और मुझे मंदिर दिख जाए तो मैं बहुत खुश होती हूँ। इसमें माता रानी है, सबका है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और एक और है आगे, ये देखो साईं मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है, बहुत ही प्यारा लगा। एक सेकेंड, हाँ देखो मेरे घर के बहुत बगल में ही है। आई थिंक सो साईं बाबा दिख जाए तो दर्शन हो गया होगा जिन जिनको, तो कर देना। अभी मैंने दूसरा ऑटो पकड़ा है, जा रही हूँ। सो मैं आ गई थी 7 बजे घर पे आई हूँ और अभी तक खाना नहीं खाया। मेरे को बहुत ज़ोरों का भूख लग रहा है। अभी रोटी बनाई और आते के साथ मेरे को सुनने को मिला, मेरे को मन नहीं लग रहा था आज, तुम नहीं थी तो आ गई तो मन लग रहा है। मेरी मम्मी को मन नहीं लग रहा था, तो अभी हम आ गए तो मम्मी को मन लग रहा है, क्योंकि लड़ते भी है ना, लड़े बिना हम लोग का दिन नहीं जाता है। दिन में 1-2 बार लड़ ही लेते हैं कुछ। और अभी बहुत ज़ोरों का भूख लगा है, मम्मी मेरे को खाना देगी। और क्या बोले, हाँ आप लोग को मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। थोड़ा सा बहुत, मैं जब स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी मेरे को इतना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रहा था और मेरा हाथ काँप रहा था, पता नहीं क्यों। मेरा आदत छूट चुका है परफॉर्म करने का, बहुत पहले ही परफॉर्म करती थी तो डांस वाला, सिंगिंग कभी नहीं, स्पीच भी कभी नहीं। स्पीच था मेरा, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हुआ तो मैं स्पीच नहीं की, सिंगिंग कर ली। तो मिलते थोड़ी देर में खाना खाकर। Thank you so much for watching my video Milta Hi. Next video ma bye.